بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاس فرام نیشنل پبلک ہائی اسکول۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ آپ کی بک پیام اردو کا سبق نمبر 3 کی ہم نے پچھلے لیکچر میں ریڈنگ کی تھی۔ آج جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم کریں گے الفاظ معنی۔ آپ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی NPS کی نوٹ بک اوپن کریں اردو کی۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس طرح ایک لائن ڈرا کرنی ہے۔ اسکیل، لیڈ پینسلز اور ریزر وغیرہ آپ اپنی تمام چیزیں اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ آن لائن کلاس میں اچھے انداز سے کام کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اوپر ڈیٹ، آج کی ڈیٹ لکھیں، ڈے لکھیں اور جماعت کا کام لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور بعد میں آپ اس طرح یہاں پہ ایک لائن ڈرا کریں، پھر آپ یہاں پہ لائن ڈرا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ اس طرح لائن ڈرا کریں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، اس طرح آپ نے کاپی کا پیج ریڈی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر لکھنے ہیں عنوان۔ کیا لکھنا ہے؟ عنوان۔ عنوان عنوان کیا آئے گا؟ الفاظ معنی۔ الفاظ معنی، ٹھیک ہے؟ الفاظ معنی، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، بعد میں آپ نے ایک چھوٹی سی لائن یہاں پہ ڈرا کرنی ہے اور ایک یہاں پہ کرنی ہے۔ اس پہ ہم لکھیں گے الفاظ اور معنی۔ جی، اس پہ ہم لکھیں گے الفاظ اور معنی۔ سب پہلا لفظ ہے سوداگر، سین واو دال الف زرگر۔ سوداگر، سوداگر کا معنی لکھیں گے تجارت کرنے والا۔ کیا معنی لکھیں گے؟ تجارت کرنے والا۔ پیارے بچوں، آپ اپنے کاپی کی لائن چھوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی رائٹنگ میں صفائی اور نیٹنس آئے اور لکھنے میں پرابلم نہ ہو۔ آپ اپنے یہ ایک لائن چھوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پردیس، پردیس، پردیس کا معنی ہے وہ ملک جو اپنا وطن نہ ہو۔ یعنی کہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کے چاچو، چاچا، ماموں، والدین، پاپا وغیرہ باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جن کی کوئی سعودیہ ہے، کوئی کینیڈا ہے، کوئی اٹلی ہے، کوئی دبئی ہے، تو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ پردیس میں ہیں۔ پردیس جس کو بولتے ہیں۔ آگے ہے لفظ عزیز۔ عزیز، عزیز کا معنی لکھیں گے رشتے دار۔ رشتے دار، عزیز کا کیا معنی لکھیں گے؟ رشتے دار۔ آگے صدمہ، اٹھانا، غم اٹھانا۔ صدمہ اٹھانا، غم اٹھانا۔ رنجیدہ، کیا لفظ ہے؟ رنجیدہ، اس کا معنی لکھیں گے غمگین۔ غمگین، کیا لفظ لکھیں گے اس کا معنی؟ غمگین۔ آگے لفظ ہے خوبصورت۔ خوبصورت، خوبصورت، اچھی شکل والا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ لائن چھوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا کام 2 پیجز پہ آئے گا، تو آپ اگلی جو پیج ہے جو آپ کا جیسے یہ پیج ہے اس پہ بھی اس طرح جو ہے نا لائن ڈرا کر سکتے ہیں۔ جی، خوبصورت، اچھی شکل والا۔ آگے لفظ ہے رہائی۔ کیا لفظ ہے؟ رہائی۔ رہائی کا معنی ہوتی ہے آزادی۔ آزادی، یعنی کہ جب طوطے نے اپنے وہ مرنے کا ڈانگر چایا، چلاکی دکھائی، تو یعنی کہ بادشاہ نے اس کو رہا کر دیا، یعنی کہ آزاد کر دیا،
ठंडा होना मर जाना, ठंडा होना मर जाना। दिल फटना, दिल फटना, दिल फटना, बहुत अफसोस करना, बहुत अफसोस करना। घुट घुट कर मर जाना, घुट घुट कर मर जाना। तकलीफ उठा उठा कर मरना, तकलीफ उठा उठा कर मरना। प्यारे बच्चों, ये थे आपके सबक नंबर 3 के अल्फाज मानी। एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई कि इमला का लफ्ज़ गलत है तो आप उसको दुरुस्त कर लें। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो अल्फाज मानी हैं आपकी किताब सफ़ा नंबर जो 18 है उस पर भी दिए गए हैं। अगर आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा या लिखने में मसला हो रहा है तो आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। अल्फाज मानी, अनवान अल्फाज मानी, अल्फाज मानी। सौदागर, तजारत करने वाला, परदेश, वो मुल्क जो अपना वतन ना हो। अजीज़, रिश्तेदार। सदमा उठाना, गम उठाना। रंजीदा, गमगीन। खूबसूरत, अच्छी शक्ल वाला। रहाई, आज़ादी। ठंडा होना, मर जाना। दिल फटना, दिल फटना। फेट ते नून अल्फ ना फटना, बहुत अफसोस करना। घुट घुट कर मर जाना, तकलीफ़ उठा उठा कर मरना। प्यारे बच्चों, ये हमने अल्फाज मानी कॉपी पे लिख लिए हैं। अब हम आगे करेंगे किताब सफ़ा नंबर 18 का से हासिल सबक। जी प्यारे बच्चों, गौर करें और हासिल सबक अपने अल्फाज में तहरीर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हासिल सबक लिखने के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हासिल सबक क्या है, यानी कि हासिल सबक का मतलब क्या है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने तोते की चालाकी सबक आपने पीछे रीडिंग की थी, इसकी पढ़ाई की थी, इसमें जो मेन मकसद है वो क्या है वो बयान किया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सबक का। यानी कि मरकज़ी ख्याल लगा लें या उसकी जो अहम बात है वो लगा लें, उसको हम बोलेंगे हासिल सबक। अगर आपसे कोई भी टीचर्स, कोई घर में कोई आगे पीछे कोई भी पूछता है ना कि क्लास 3 के स्टूडेंट से कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या मतलब था, आप बताएं कि जो हम कहानी पढ़ते हैं, जो हम कुछ सबक पढ़ते हैं तो जो उसमें अहम बात होती है, सबक का जो इन्वान होता है, उसमें जो अहम चीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, हासिल सबक। तोते ने तोहफे के बदले में दोस्तों को सलामों प्याम इसलिए भेजा था कि इसे ये मालूम हो सके कि रहाई कैसे हासिल की जा सकती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा उदास और गमगीन हो जाता है तो इसका दिल दुनिया के कामों से अचाट हो जाता है। कभी कभी ये गम इतना ज़्यादा होता है कि इसकी मौत भी हो जाती है। यानी कि किसी की बात पे ज़्यादा हम सदमा ले लें या टेंशन ले लें तो अक्सर आप लोगों ने सुना है कि वो बीमार था या ज़्यादा उसने सदमा लिया तो वो फौत हो गया, जिनकी वफ़ात पा गया। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान को कुछ हासिल करना हो तो इसे अपने आप को मुश्किल में डालना ही पड़ता है, जैसे तोते ने आज़ादी हासिल करने के लिए किया। इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान को कुछ हासिल करना हो तो इसे अपने आप को मुश्किल में डालना ही पड़ता है, जैसे तोते ने आज़ादी हासिल करने के लिए किया। प्यारे बच्चों, इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जो आपसे रिलेटेड है। जैसे आपके एग्ज़ाम हैं और जैसे आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, अगर आप मेहनत से काम करोगे तो आप अच्छे अंदाज से लिखोगे, साथ साथ काम करोगे, जब आपके एग्ज़ाम हो आपको मुश्किल नहीं होगी। इसी तरह जब हमारे एनुअल पेपर्स वगैरह होते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं और वक्ती तौर पर तो हमें मुश्किल उठाना पड़ती है, टाइम पर उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आती है तो उससे हम खुद तो खुश होते हैं,
हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार भी, हमारे वालिदैन भी, और सबसे बढ़ कर हम खुद बहुत खुश होते हैं कि हमारी क्लास में A+ ग्रेड आया है और हमने बहुत अच्छे अंदाज से मेहनत की है। यानी कि कुछ हम जब मेहनत करते हैं, अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, तो तभी हमें कामयाबी मिलती है। प्यारे बच्चों, आगे किताब का सफ़र नंबर है 19। सोचें, बताएं और लिखें। प्यारे बच्चों, ये हैं सवालात के जवाबात। सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला था? सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला था। यानी कि सौदागर जब सफ़र पे गया था, जब तोते ने पैगाम दिया था, तो वो हिंदुस्तान के सफ़र पे निकला था ना। तो इसी तरह इसका हम आंसर लिखेंगे, सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला। आगे, तोते ने अपने दोस्तों को क्या पैगाम भिजवाया था? यानी कि तोते ने अपने दोस्तों को क्या पैगाम भिजवाया था? प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने रीडिंग पढ़ी है, उसमें आपने गौर करें तो आपको एक सवाल मिलेगा कि तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम किसके हाथ दिया था? बादशाह के हाथ। और क्या पैगाम दिया था वो सुने आप। तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया कि मैं कैद में हूँ। प्यारे बच्चों, यानी कि तोते ने एक पेज पे लिख के कहा कि मैं कैद में हूँ, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया कि मैं कैद में हूँ। सौदागर को किस बात पर अफसोस हुआ? सवालिया निशान आप लगाएंगे, इसका जवाब आप लिखेंगे। सौदागर को इस बात पर अफसोस हुआ कि इसने तोते का पैगाम क्यों पहुँचाया। इसने तोते का पैगाम क्यों पहुँचाया? तोते की चालाकी क्या थी? तोते की चालाकी ये थी कि इसने आज़ाद होने के लिए मरने का बहाना किया। हालांकि वो मरा नहीं था, उसने आज़ाद होने के लिए मरने का बहाना दिया। यानी कि जो उसने अपने बड़े तोतों को पैगाम दिया था ना, उसने ये जब डांग रचाया और बादशाह ने आके वैसे ही बताया, तो जो अगला तोता था उसने भी वही डांग रचाया, तो उसने बादशाह ने उसको आज़ाद कर दिया। प्यारे बच्चों, आगे अब हम सवालात के जवाबात के दोबारा पढ़ेंगे। सौदागर किस मुल्क के सफ़र पर निकला? सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र पर निकला। तोते ने अपने दोस्तों को क्या पैगाम भिजवाया? तोते ने अपने दोस्तों को पैगाम भिजवाया कि मैं कैद में हूँ। सौदागर को किस बात पर अफसोस था? सौदागर को इस बात पर अफसोस हुआ कि इसने तोते का पैगाम क्यों पहुँचाया। तोते की चालाकी क्या थी? तोते की चालाकी ये थी कि इसने आज़ाद होने के लिए मरने का बहाना किया। प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे जी। प्यारे बच्चों, अब अल्फाज जुमले। वतन, हमारा वतन पाकिस्तान है। वतन होता है मुल्क, यानी कि जैसे हमारा वतन पाकिस्तान है ना, तो आप इसका जुमला लिखेंगे हमारा वतन पाकिस्तान है। ख्वाहिश, हमें दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। ख्वाहिश, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को आपकी क्लास में किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास रेज़र नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो यानी कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सबक, अपना सबक दिल लगाकर याद करो। माजरा, ये माजरा सौदागर की समझ से बाहर था। सदमा, तोते को शदीद सदमा पहुंचा। रंज, सौदागर को अपने लिए पर रंज उठाना पड़ा। सौदागर को अपने लिए रंज उठाना पड़ा। सौदागर को अपने लिए रंज उठाना पड़ा। प्यारे बच्चों, आप इसका ये भी लिख सकते हो, सौदागर को अपने किए पर रंज उठाना पड़ा। ठीक है, दोबारा एक बार फिर पढ़ें, और जहाँ कहीं आपने जो काम लिखा है उसमें कोई गलती है तो दुरुस्त कर लें। वतन, हमारा वतन पाकिस्तान है। ख्वाहिश, हमें दूसरों की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। सबक, अपना सबक दिल लगा कर याद करो। माजरा, ये माजरा सौदागर की समझ से बाहर था। सदमा, तोते को शदीद सदमा पहुंचा। रंज, सौदागर को अपने किए पर रंज उठाना पड़ा।